Hello everyone, welcome to my channel Pathostroke. Please like, share and subscribe my videos if you really like them. After this video, I hope from you all that you will help me in reaching 200 subscribers in this week. Today's topic is iron deficiency anemia, so let's start our video now. First of all, we have to understand about the meaning of this word hypochromic. The word itself indicates that there is decrease in the color of the red blood cells, and the cause may be due to number one is iron deficiency, in which red cell indices, all the red cell indices like MCV, MCH, MCHC are reduced. I have also told about all these values in a complete manner in my last video, and you can go through it and I'll put the link below. So when these all three values also decreases, that occurs due to defective hemoglobin synthesis. We'll classify hypochromic anemias into two groups. Number one is iron deficiency, and other one comes with examples like sideroblastic anemia. Other ones are thalassemia and anemia due to chronic disorders. First of all, we'll consider here iron deficiency anemia. Mainly iron deficiency anemia की नाम से ही पता लगता है it is because of deficiency of iron. So we have to first of all understand in a short way the iron metabolism. Normally जो iron loss होता है वो skin से, bowel से, genitourinary tract से होता है, and that is approx 1 milligram per day. ठीक, in adult male and non menstruating females. ये जो ratio है ये अडल्ट मेल्स और नॉन मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स के लिए होता है, बट इन मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स इट इज़ 1.5 to 2 milligram per day. To meet the daily requirements of the iron, you have to take leafy vegetables, beans, meat, liver, and plus recycling of the iron from senescent RBC should also occur in your body. We'll understand the pathogenesis of iron deficiency anemia. Mainly, it develops when iron supply is inadequate, obviously. For what? For synthesis of hemoglobin. जब hemoglobin की synthesis के लिए iron supply inadequate हो जाती है from several reasons, then there occurs the iron deficiency anemia. अब here you will see that then iron is balanced by mobilization from iron stores to marrow. जब आपकी iron supply normal diet या किसी भी तरह कम हो जाएगी तो body में जो भी iron के stores होते हैं वहाँ से iron की supply बढ़ा दी जाती है, जिसकी वजह से आपका जो भी डेली रिक्वायरमेंट्स है आयरन की वो मीटअप हो सके बॉडी में. एंड ओनली आफ्टर दिस टिश्यू स्टोर्स आर एग्जॉस्टेड. जब ये टिश्यू के जो स्टोर्स होते हैं, जब आयरन स्टोर्स भी ख़त्म हो जाते हैं बॉडी में, तब जाके जो सप्लाई होती है मैरो से वो इनसफिशिएंट हो जाती है. फॉर व्हाट? फॉर सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन. यानी कि जब टिश्यू के स्टोर्स भी ख़त्म हो गए, मैरो ने भी सप्लाई करना बंद कर दिया आयरन को, तब हीमोग्लोबिन सिंथेसिस हैम्पर होने लगती है. अभी तक ये हैम्पर नहीं हो रही थी, अभी सिर्फ बॉडी में सप्लाई कम जा रही थी. जो स्टोर्स थे तो आयरन स्टोर्स ने पहुंचा दिया आयरन. अब आयरन स्टोर्स में से भी ख़त्म जब होने लगा, वहाँ से भी टिश्यू से भी जब एग्जॉस्ट होने लगा, तब जाके आपको जो हीमोग्लोबिन सिंथेसिस है वो डेफिशिएंट या इनसफिशिएंट देखने को मिलती है, जिसकी वजह से स्टेट्स ऑफ एनीमिया डेवलप हो सकते हैं. अब हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस हैम्पर होती है तो डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स आपकी हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस हैम्पर हो सकती है. फॉर एग्जांपल, अगर इंक्रीज ब्लड लॉस हो जाए, आपकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाएं, फॉर एग्जांपल इन प्रेगनेंसी, या फिर इनएडिक्वेट डाइट हो जाए, इनएडिक्वेट डाइट का इंटेक है, यू आर नॉट टेकिंग द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आयरन, that's why also you can meet with the iron deficiency anemia. And the last one is decrease intestinal absorption. मान ली आप डाइट भी अच्छे से ले रहे हैं, कोई ब्लड लॉस नहीं है, कोई इंक्रीज रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपको जो दिमाग जाना चाहिए वही होना चाहिए कि कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्शन में डिफेक्ट है, कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को आयरन नहीं मिल पा रहा है. After understanding the pathology, we have to go through the etiology of iron deficiency anemia. The number one cause is that it is always secondary to the underlying disorders. ये एक मेन पॉइंट है जो हमें ध्यान रखने का है कि कभी भी जो एनीमिया होगा वो प्राइमरीली किसी वजह से नहीं होगा, कोई ना कोई कॉज होगा अंडरलाइंग जिसकी वजह से सेकेंडली आपको ये डिजीज़ देखने को मिलेगी. सो वी हैव टू करेक्ट दैट कॉज जिसकी वजह से एनीमिया करेक्ट हो सके. फॉर एग्जाम्पल, किसी को ब्लड लॉस होता है, ब्लड लॉस हो गया, इतना ज़्यादा सीवियर ब्लड लॉस हो गया कि बॉडी में ब्लड कम हो गया. जब ब्लड कम हो गया तो वो फर्स्ट कॉज हो गया ना, जिसकी वजह से सेकेंडरी अंडरलाइंग आपको एनीमिया देखने को मिल सकता है. तो इस तरह के काफ़ी सेवरल कॉजेज होते हैं. देयर मेनी वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर. नंबर वन इज़ वुमेन इन रिप्रोडक्टिव ईयर्स ऑफ लाइफ. अब वुमेन्स जब रिप्रोडक्टिव ईयर्स में होते हैं अपने लाइफ के, तो उनमें ब्लड लॉस देखने को मिलता है. सबसे पहले तो मेंस्ट्रुएशन की वजह से ही देखने को मिलता है, स्पेशली इन द यंग गर्ल्स. देन कम्स द इंसर्शन ऑफ IUCDs की वजह से जो ब्लड लॉस होता है, रिपीटेड मिसकैरेजेस में ब्लड लॉस होता है. ये सारे कॉजेज़ होते हैं जहाँ पे ब्लड लॉस देखने को मिलता है.
कम्स द इनएडिक्वेट इनटेक। अब आपका अगर इनटेक ही सही नहीं है, फॉर एग्जांपल जो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की वुमेंस होती हैं, खासकर उनका आयरन या फिर किसी भी सप्लीमेंट का इनटेक इतना अच्छा नहीं होता, और अदर हो सकते हैं एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ हेपेटाइट, इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन ही ख़राब है तो आप कितना भी इनटेक कर लो वो असर नहीं करेगा। डिमिनिश बायो अवेलेबिलिटी, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं हमारी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। नंबर थर्ड कम्स द इंक्रीज रिक्वायरमेंट्स। प्रेगनेंसी में अबाउट 750 मिलीग्राम ऑफ आयरन इज टेकन अप बाय, डिवाइड होकर टेकन अप होता है, एक चीज़ नहीं लेती। फॉर एग्जांपल 400 मिलीग्राम फीटस ले लेता है आयरन, 150 मिलीग्राम नीड्स प्लेसेंटा एंड 200 मिलीग्राम इज नीडेड बाय इन पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। इस तरीके से वुमेन की बॉडी में से 750 मिलीग्राम्स ऑफ आयरन जो होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे यूज़ अप हो जाता है, तो जिसकी वजह से रिक्वायरमेंट्स हमारी डबल हो जाती हैं आयरन के लिए इन अ प्रेग्नेंट वुमेन। जो होता है सेवरल प्रेगनेंसीज हो जाए शॉर्टर इंटरवल्स पे। ऑब्वियसली हमने अभी पीछे देखा जब 750 मिलीग्राम का यूजेज आ रहा है एक टाइम की प्रेगनेंसी में, तो उसे कवर अप करने के लिए बॉडी को कुछ टाइम तो चाहिए, अप्रॉक्स 2 to 3 ईयर्स का गैप होना चाहिए हर प्रेगनेंसी के बीच में। लेकिन अगर वो गैप नहीं मेंटेन हो पाता है सेवरल रीजंस की वजह से, तो भी वुमेंस की बॉडी में अनीमिया देखने को मिलता है, और मेनली आपको इंडियंस में वुमेंस अनीमिक ही मिलती हैं। नेक्स्ट कम्स द पोस्ट मेंस्ट्रुअल वुमेन। अब जो पोस्ट मेंस्ट्रुअल वुमेन्स होती हैं उनमें तो ब्लड लॉस नहीं हो रहा होता है, तब भी काफ़ी ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से आपको अनीमिया उनमें देखने को मिल सकता है। फिजियोलॉजिकल जो रीज़न होता है वो होता है डिमांड फॉर आयरन जो होता है इस मोमेंट पे डिक्रीज़ हो जाता है, और डिक्रीज़ हो जाता है ये समझने वाली बात है। लेकिन जो एनीमिया हो सकता है ड्यू टू एनी क्रॉनिक ब्लड लॉस, क्योंकि अगर वुमेन्स पोस्ट मेंस्ट्रुअल वुमेन्स में हमें ये देखना है, कोई इतना वो बात नहीं है, बस कोई भी क्रॉनिक ब्लड लॉस हो जाए किसी भी वजह से उस रीज़न में देखने को मिल सकता है। और सेवरल अदर इंपॉर्टेंट कॉजेज फॉर द पोस्ट मेंस्ट्रुअल वुमेन हैविंग एनीमिया में आते हैं। नंबर 1 पोस्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। पोस्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग किस रीज़न से हो सकती है? एनी कार्सिनोमा ऑफ द यूट्रस, ब्लीडिंग फ्रॉम एलिमेंट्री ट्रैक्ट, किसी भी रीज़न से हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल कार्सिनोमा ऑफ द स्टमक, लार्ज बाउल्स एंड हाइटिस हर्निया। ये सारे केसेस में आपको पोस्ट मेंस्ट्रुअल वुमेन में अनीमिया, स्पेशली आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट कम्स द अडल्ट मेल्स। वैसे मेल्स में अनकॉमन होता है एनीमिया होना, लेकिन मेनली कोई क्रॉनिक ब्लड लॉस हो जाए या फिर कोई भी एक्यूट ब्लड लॉस केस हो जाए, उस कंडीशंस में अडल्ट्स में भी अनीमिया देखने को मिलता है इस मेल्स में। नंबर 1 होता है कॉज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, कोई पेल्विक अल्सर है, हेमोरॉइड्स की कंडीशन है, कोई हुकवॉर्म इन्फेस्टेशन है या कोई कार्सिनोमा है, उन सब केसेस में मेल्स में भी अनीमिया होने के चांसेस होते हैं। सेकेंड कॉज आता है मेल्स में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जहाँ पर हेमेचूरिया और हेमोग्लोबिन्यूरिया की कंडीशन में आपको ब्लड लॉस देख सकते हैं आप। नंबर थर्ड वन इज़ नोज। रिपीटेड एपिस्टेक्सिस होता है किसी भी ये तो कोई वो नहीं है कि मेल या फीमेल्स में ही हो, तो एपिस्टेक्सिस की कंडीशन में भी ब्लड लॉस काफ़ी जब हो जाता है तो एनीमिया की कंडीशन आती है। नंबर फोर्थ रीज़न इज़ लंग्स में, जब हेमोप्टाइसिस हो जाता है फ्रॉम वेरियस कॉजेज़। गो थ्रू द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। यहाँ पर दो तरह के क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। नंबर 1 अनीमिया एंड नंबर 2 इज एपिथेलियल टिश्यू चेंजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वील अंडरस्टैंड अबाउट एनीमिया। जब ऑनसेट होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का जो वो स्लो होता है, जो धीरे धीरे आपको सिम्टम्स आते हैं, एकदम से एनीमिया डेवलप नहीं हो जाता, स्लोली आपको एनीमिया होता है। फॉर एग्जाम्पल सिम्टम्स आर वीकनेस, पेलर ऑफ, कहाँ देखने को मिलेगा पेलर? स्किन में, म्यूकस मेम्ब्रेन में, स्क्लेरे में। तो जब हम आइज़ में चेक करते हैं तो ध्यान रखने वाली बात होती है कि जॉन्डिस के लिए कहाँ चेक करना है और एनीमिया के लिए कहाँ चेक करना है। एनीमिया के लिए हम चेक करते हैं अंडर द आइज़, और जॉन्डिस के लिए चेक करते हैं अबव आईलिड के ऊपर। तो ये वाली चीज़ ध्यान रखनी है कि हम किस तरह डिस्टिंग्विश करें कि अनीमिया है या जॉन्डिस की कंडीशन है। नेक्स्ट सिम्टम्स कम्स द डिस्निया, पैल्पिटेशंस, ये सारे सिम्टम्स अनीमिया में स्लोली ऑन द ग्रेजुएशन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट कम्स द एपिथेलियल टिश्यू चेंजेस। एपिथेलियल टिश्यू चेंजेस अनीमिया में क्या होते हैं? क्रॉनिक आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में खासकर देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉलोनीशिया, यहाँ पर क्या होता है? स्पून शेप्ड नेल जो जाते हैं, एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो। सेकेंड वन यू विल सी टंग में जब एट्रोफिक ग्लोसाइटिस की कंडीशन हो, या फिर माउथ में कभी एंगुलर स्टोमेटाइटिस की कंडीशन हो जाए, या ईसोफेगस में डिस्फेजिया हो जाए फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफ थिन मेम्ब्रेनस वेब्स एट पोस्ट क्रिकॉइड एरियाज में। जब इस एरिया में जब आपको थिन मेम्ब्रेनस वेब्स देखने को मिलते हैं, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, उस कंडीशन को हम कैसे बता सकते हैं कि हो सकता है कि उस कंडीशन में एनीमिया हो, क्रॉनिक टाइप ऑफ एनीमिया हो। तो ये सारी कंडीशंस आपको हिंट देती हैं कि यहाँ पर क्रॉनिक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की कंडीशन आ सकती है। तो ये जो ईसोफेगस में डिस्फेजिया वाली कंडीशन आती है, ये बहुत रेयर होती है और इसको प्लमर विंसन सिंड्रोम भी कहते हैं। गो फर्दर इन लैब फाइंडिंग्स। यहाँ पर एनीमिया को हम प्रोग्रेस होते हुए देखते हैं 3 स्टेजेस में। फर्स्ट स्टेज इज
स्टोरेज आयरन डिप्लेशन, जब आयरन का स्टोरेज एरिया में डिप्लेशन आना शुरू हो जाता है, लॉस ऑफ आयरन रिजर्व्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर क्या होता है, विदाउट कंप्राइजिंग आयरन सप्लाई फॉर एरिथ्रोपोइसिस, यानी कि सब फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, धीरे धीरे आयरन की जो इनटेक है या कुछ भी रीज़न है कम हुआ, इसकी वजह से स्टोरेज जहाँ थी आयरन की, वहाँ से आपको ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो गया, वहाँ से आयरन मिलने लगा बॉडी को, क्योंकि बॉडी को हैम्पर नहीं करना है किसी भी तरीके से, इसलिए स्टोरेज डिप्लेशन होना स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे आयरन वहाँ से निकल के डेली रिक्वायरमेंट्स मीट करने लगता है। तो यहाँ पर हम यही देखेंगे कि एरिथ्रोपोइसिस में तो कोई डिफेक्ट नहीं आएगा और यहाँ पे हीमोग्लोबिन में हम कोई कमी नहीं देखेंगे, बट धीरे धीरे प्रोग्रेस स्टार्ट हो चुकी होती है, ये चीज़ पता नहीं लगती। और नंबर सेकंड फिर स्टेज आती है आयरन डेफिशिएंट एरिथ्रोपोइसिस, जब धीरे धीरे आयरन सप्लाई भी रिड्यूस हो जाती है, यानी कि जब स्टोरेज भी तो एक लिमिट तक की होती है, कुछ मंथ्स के लिए होती है, तो यानी कि जब वो स्टोरेज भी ख़त्म हो जाएगी तो आयरन डेफिशिएंट एरिथ्रोपोइसिस होने लगेगी, यानी कि विदाउट डेवलपमेंट ऑफ एनीमिया। एनीमिया अभी भी देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ एरिथ्रोपोइसिस आयरन डेफिशिएंट होएगी, एरिथ्रोपोइसिस होएगी अभी भी बट आयरन डेफिशिएंट। फाइनली जब आता है वो होता है आयरन डेफिशिएंट एनीमिया, जहाँ पर जो रेड सेल आपको देखने को मिलती हैं माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक होती हैं। फ्रॉम इन माय लास्ट टू लास्ट वीडियो आई हैव टोल्ड completely what is microcytic hypochromic in red cell indices video, you can go through it and I have given the link below। अब ये सारी कंडीशन जब हमने देखी तो हमें धीरे धीरे पता लगा कि एनीमिया जो है वो स्लो इन ग्रेजुएशन है। तो धीरे धीरे ये बात क्लियर हुई कि फर्स्ट स्टेज में सिर्फ आयरन स्टोरेज का डिप्लेशन होता है, सेकंड स्टेज में एरिथ्रोपोइसिस तो हो रही होती है लेकिन कुछ अमाउंट तक आयरन डेफिशिएंट होता है, अभी भी एनीमिया डेवलप नहीं हुआ होता है। थर्ड स्टेज जब होती है, जब कंप्लीट आपको आयरन डेफिशिएंसी हो जाएगी तो रेड सेल्स माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक हो जाते हैं। देखने वाली बात होती है रेड सेल की मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक मिलेगा। ये सारे वर्ड्स मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं अपनी लास्ट वीडियो में, यू कैन गो थ्रू इट। अब उसके बाद आते हैं रेड सेल इंडेसेस। रेड सेल इंडेसेस MCV, MCH, MCHC ऑल थ्री विल बी रिड्यूस्ड वेरी वेल। उसके बाद थर्ड आता है मैरो एरिथ्रोपोइसिस। मैरो एरिथ्रोपोइसिस में माइक्रो नॉर्मोब्लास्टिक मिलेगा। यू विल सी इन द लैब फाइंडिंग्स कि मैरो आयरन स्टोर्स डेफिशिएंट होंगे, आयरन के स्टोर्स ऑब्वियसली डेफिशिएंट होंगे। जैसे हमने स्लोली ये स्टेप बाय स्टेप समझा तो उससे क्लियर हुआ कि धीरे धीरे जो आयरन स्टोर्स होते हैं ऑब्वियसली मैरो में होते हैं, तो वहाँ से डेफिशिएंट होने स्टार्ट हो जाते हैं। Thank you so much for giving me your time. Please like, comment, subscribe and share my videos if you really like them, and do follow me on my Instagram ID pathostroke.